Hello, very good afternoon to all the students who are watching these live sessions. Myself is Robin Yugraj Singh Dillo from Yugraj Foundation Amritsar, and we are the study visa consultant from Amritsar, and we are in this business for last more than 19 years. And today we are going to talk about few of colleges in Canada where you can get the admissions. So this seminar will be combined into three languages: Hindi, English as well as Punjabi, so that all of you viewers can understand what we are talking about. So ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫੀਸ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿੱਥੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, PR ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਪਲੱਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਲਜਸ ਜਿੱਥੇ ਛੇਤੀ PR ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਟੈਚ ਹੋਣਗੇ ਦੋ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਬਰਲੈਂਡ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜੀ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਮਲਟੀਐਕਸ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਸਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਕਾਲਜਸ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ you all peoples to join our live session, and I want to see more and more peoples. I hope you are listening me, you are able to listen my voice. Am I right? If you can hear me properly, just message me that you can hear me properly. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਏ ਜੀ ਉਦੈ ਜੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਗੌਰੂ ਬੇਦੀ ਜੀ। ਓਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ 1-2 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਬੜੀ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਆ ਪਰ ਫੀਸ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 1 ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ ਜਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਵੀ। ਸੋ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫੀਸ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਜਿਹੜਾ DLA ਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੀਸ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਡਿਜੀਟਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੈਲਕਮ ਮਿਸਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਰੋਏ ਫਰੋਮ ਕੰਬਰਲੈਂਡ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਜੀ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕੰਬਰਲੈਂਡ ਕਾਲਜ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਰੀਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੈਂਕੂਵਰ ਕਾਲਜਸ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਮਣੀ ਸੰਧੂ ਜੀ ਵੈਲਕਮ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ। ਓਕੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੈਂਬਰੀਆ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜੀ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਸਰੀ ਕੈਂਪਸ ਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੈਂਪਸ ਆ, 3-4 ਕੈਂਪਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪਸਿਸ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੀਸ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਡਿਜੀਟਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਸੋ ਇਹ 2 ਕੋਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਜੀ ਅਪ ਟੂ 3 ਈਅਰ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜਸਟ 18 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲਗਾ ਕੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ 18 ਮਹੀਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਡਿਜੀਟਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 2 ਨੇ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ BCom ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। BCom ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਸਟ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫੀਸ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੈਂਕੂਵਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ।
ਵੈਂਕੂਵਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਕੇ, ਸੋ ਟੋਟਲ 2 ਸਾਲ, 1 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ, 1 ਸਾਲ ਵੈਂਕੂਵਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ ਅਪ ਟੂ 3 ਈਅਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਨਾਓ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦ ਪੁਆਇੰਟ, ਵਟ ਆਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 6 ਬੈਂਡ ਓਵਰਆਲ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਕ 'ਚ 5.5 ਬੈਂਡ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਪੀਟੀ ਆ, ਪੀਟੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੀਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਜਸਟ 50 ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 50 ਸਕੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਪੀਟੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲੈ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵੈਬੀਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੁਗਰਾਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਸਟਰ SK ਸ਼ਰਮਾ ਫਰੋਮ ਕੈਂਬਰਿਜ ਕਾਲਜ ਆਲਸੋ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਉਹ ਲਾਈਵ ਖੁਦ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਡਿਜੀਟਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਡਿਜੀਟਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ IT ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਰੀਮ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ 6 ਬੈਂਡ ਓਵਰਆਲ ਚਾਹੀਦੇ, 5.5 ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 1-2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ, 1 ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ, 1 ਸਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ, ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਪਲੱਸ 18 ਮਹੀਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸੋ ਆਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆ। ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ 6 ਬੈਂਡ ਓਵਰਆਲ, 5.5 ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ PT ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ 50 ਸਕੋਰ, ਤੇ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ। ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਪਲੱਸ 2 'ਚ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 60% ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ Miss Bhumika, Manager International from Multi Exa College. So I would request Miss Bhumika to send me the request so that I can add her. Bhumika जी मैसेज कीजिए एक बार। लो जी लाइव आ रहे मैडम। हेलो, वी वेलकम मिस भूमिका। हेलो मैडम, गुड आफ्टरनून। ओके, welcome madam. So now I would request you to share some information about college Multi Exa. I think your internet connection is okay or it is a bit slow? It might be a little slow, but I'm hoping it to be a little better. Okay. So over to Miss Bhumika from College Multi Exa, Quebec City. Thank you madam. Okay, thank you so much, Robin, for hosting this live session for College Multi Exa. Yeah, thank you. I would like to introduce myself. I am Bhumika, the marketing manager for College Multi Exa, and I take care of the global recruitment of the international student for College Multi Exa. तो मल्टी एक्सा कॉलेज क्यूबेक प्रोविंस में लोकेटेड है कनाडा के। तो सबसे पहले तो लोकेशन की ही बात आती है। सो क्यूबेक आज की डेट में काफी अच्छा प्रोविंस है, स्टूडेंट्स का वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन रहता है कनाडा के लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे PR ऑप्शंस और अफोर्डेबल लिविंग कॉस्ट है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कॉस्ट बहुत मैटर करता है। तो क्यूबेक का जो लिविंग कॉस्ट है और साथ में क्यूबेक इंस्टीट्यूशन की जो फीस है खासतौर से मल्टी एक्सा कॉलेज की, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल है। सो इसीलिए बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ज्यादा आकर्षित रहते हैं क्यूबेक में पढ़ने के लिए। तो मल्टी एक्सा कॉलेज भी क्यूबेक में ही लोकेटेड है। और बात करते हैं हमारी सिटी के बारे में जहां पर कॉलेज है लोकेटेड, और साथ ही साथ में बात करते हैं प्रोग्राम्स और हमारी अपॉर्चुनिटीज जो जॉब्स की रहती हैं मल्टी एक्सा कॉलेज के प्लेसमेंट्स के बेसिस पे। सो ये सभी चीजें हम आज के लाइव सेशन में कवर करेंगे ताकि स्टूडेंट्स को एक क्लैरिटी मिल सके मल्टी एक्सा कॉलेज को लेके, क्यूबेक को लेके, और वो सितंबर इनटेक की डेडलाइन से पहले अप्लाई कर सके। तो मल्टी एक्सा कॉलेज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ क्यूबेक प्रोविंस में लोकेटेड है, जिसका नाम है बेसिकली सैगने। एंड सैगने में हमारा जो कॉलेज है दैट इज
Montreal. थोड़ा So कट it's गया very मेरे ख्याल से। beautiful. से भी एक्चुअली में 3 गुना बड़ा सिटी है if you look at the statistics. और इस सैगने सिटी को क्यूबेक का कल्चरल कैपिटल कहा जाता है, साथ ही में सैगने सिटी को इंडस्ट्रियल हब भी कहा जाता है क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री सेटअप है. So yeah, this is one of the benefits. इसके अलावा अगर मैं कॉलेज हिस्ट्री की बात करूं तो मल्टी हेक्सा कॉलेज जो है वो 1986 में स्टैब्लिश हुआ था. 35 साल पुराना कॉलेज है आज की डेट में और बहुत ही स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी काफी पढ़ा चुके हैं. इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारे साथ कैंपस पर पढ़ रहे हैं. सो बहुत ही ग्रेजुएट. सो आप अंडर ग्रेजुएट IT डिप्लोमास के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर सितंबर 21 इनटेक, और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 15 जून. उसके बाद हमारा इनटेक क्लोज हो जाएगा और उसके बाद जो नेक्स्ट इनटेक अवेलेबल रहेगा वो रहेगा जनवरी. तो सभी स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूंगी कि अगर आपको पढ़ना है कनाडा में तो अभी सितंबर इनटेक क्लोज होने के बाद डायरेक्ट आप जनवरी इनटेक में ही एनरोल कर पाएंगे. तो बहुत ही कम टाइम बचा है आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस कराने के लिए. सो इट्स बेटर कि आप फटाफट से कॉलेज की इन्फॉर्मेशन को चेक करें और अपने आप को एनरोल करें हमारे अपकमिंग इनटेक के लिए. तो मैं पंजाबी बात व्यूअर्स के करते लिए हैं ਵੀ ਥੋੜਾ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈਟੀ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਟੀ ਦਾ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਆਈਟੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ. 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਡੇਟ ਹੋ ਗਈ ਲਗਭਗ 21 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਾਏ ਦੀ ਮਈ ਐਂਡ ਜਾਂ ਫਸਟ ਵੀਕ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਸਤੇ. ਸੋ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ. ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਮੈਡਮ ਦੱਸਣਗੇ ਹੁਣ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ. ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਸਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ what are the benefits, what sort of scholarship Multi Hexa is going to offer. So over to Miss Bhumika again. ओके. सो यहाँ पर मैं कुछ बेनिफिट्स मेंशन करना चाहूंगी सभी स्टूडेंट्स के लिए. तो सबसे पहले तो जो क्यूबेक का जिनके जो मेजर क्वेश्चन आ रहे हैं लैंग्वेज ना हम सभी के आंसर देंगे, ठीक है ना. पहले ये सेमिनार थोड़ा ओवर हो जाए, उसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे हम वी विल गिव ऑल सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन. बिल्कुल बिल्कुल आप अपने क्वेश्चंस प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए और आप सभी के क्वेश्चंस हम लोग लाइव आंसर करेंगे. साथ ही साथ हम इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं. सो क्यूबेक एक फ्रेंच डोमिनेटेड प्रोविंस है जहां पर अगर जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जाते हैं अगर वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ते हैं ऑन कैंपस तो गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें पे किया जाता है. सो दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट. आप फ्रेंच क्लास पढ़ के भी अर्न कर सकते हैं अगर आप क्यूबेक में पढ़ते हैं तो. इसके अलावा अगर मैं बात करूं हमारे रिक्वायरमेंट्स की और हमारे फी स्ट्रक्चर की, जिसके लिए सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हमें मिलते हैं कमेंट सेक्शन में. सो मल्टी हेक्सा कॉलेज में हमारा एप्लीकेशन फी वेव्ड ऑफ है. आपको ऑफर लेटर अप्लाई करने के लिए कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है. और हमारा जो ट्यूशन फीस रहेगा दैट इज जस्ट $11,800 कैनेडियन डॉलर्स. $11,800 इज द ओनली ट्यूशन फीस एक साल की जो आपको पे करनी है टू स्टडी इन कॉलेज मल्टी हेक्सा. इसके अलावा अगर मैं बात करूं हमारी रिक्वायरमेंट्स की, सो ग्रेड 12 में आपका कम से कम 50% ओवरऑल होना चाहिए विद नो सब्जेक्ट लेस देन 50%. और आईएल्स में हमें चाहिए कम से कम 6 ओवरऑल विद 5.5 एक्सेप्टेड इन ओनली वन मॉड्यूल. तो अगर आपने आईएल्स किया है विद 6 ओवरऑल एंड 5.5 इन ओनली वन मॉड्यूल देन वी कैन एक्सेप्ट यू. आप सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं. और अगर आपने आईएल्स की बजाय पीटीई किया है तो हम पीटीई भी एक्सेप्ट करते हैं. और आज की डेट में पीटीई के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं वीजा वाइज अगर हम देखें कनाडा के लिए. सो पहले पीटीई ज्यादातर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में एक्सेप्टेड होता था बट नाउ इट्स वेरी गुड गोइंग फॉर कनाडा एज वेल. सो अगर आपने पीटी किया है हम पीटी भी एक्सेप्ट करते हैं. एंड हमारा रिक्वायरमेंट रहता है 55 ओवरऑल विद नो मॉड्यूल लेस देन 51 इन पीटीई. तो नोट कर लो सारे 55 मतलब 55 ਸਕੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਪੀਟੀ ਚ. ਪੀਟੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ 55 ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ 51. ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ ਮੈਮ? 51 ਇਜ਼ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ. ਰਾਈਟ. ਮਿਨੀਮਮ 51 ਹੈ. ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਾਲਜ ਮਲਟੀ ਹੈਕਸਾ ਚ ਆਈਟੀ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਵਾਸਤੇ. ओवर टू भूमिका मैडम अगे. राइट. ओवरऑल 55 होना चाहिए और हर एक मॉड्यूल में 51 से कम नहीं होना चाहिए. सो ओवरऑल 55 एंड ईच 51 मिनिमम. सो ये हमारा पीटी का रिक्वायरमेंट है. और अगर आपने कैम्ब्रिज टेस्ट ऑफ इंग्लिश के लिए अपीयर किया है तो हम कैम्ब्रिज टेस्ट ऑफ इंग्लिश भी एक्सेप्ट करते हैं.
सो अगर आपने इन तीनों में से किसी भी इंग्लिश टेस्ट के लिए अपियर किया है, वी विल बी एबल टू एक्सेप्ट यू एट मल्टी हेक्सा कॉलेज। सो बहुत ही अफोर्डेबल फीस है, एप्लीकेशन फीस नहीं है। आपको हम 24 to 48 आवर्स में कंडीशनल ऑफर लेटर एंड दी ऑफर लेटर इशू करके देते हैं। सो इट्स वेरी क्विक, द प्रोसेस विल बी वेरी क्विक अगर आप आज अप्लाई करते हैं सितंबर 21 इनटेक के लिए, बिकॉज हम बहुत ही क्लोज है डेडलाइन के आज की डेट को अगर देखें। जी जी, सब तो पहले मैं दसना चाहना कि कॉलेज ਜਿਹੜਾ DLI ਅਪਰੂਵਡ ਹੈ, ਕਾਲਜ DLI ਅਪਰੂਵਡ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਆਫਰ ਲੈਟਰ 24 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। LOL ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਅੱਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਆਲ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਲ ਬੀ ਫਾਈਨ। Oh, you are back again? Yeah, I think your network is creating some sort of problem. Usually it is very fast. So, I think you just broke off in the middle. Can you repeat आपका last sentence? What we were discussing, मैंने तो यही कहा था कि जो सितंबर इनटेक के लिए जो भी आपके स्कॉलरशिप प्लान वगैरह जो भी आपका सारा उसके बारे में बता रहे थे, और डेडलाइन वगैरह है। अभी कंटिन्यू कीजिए अभी आप। बिल्कुल बिल्कुल। सो सितंबर इनटेक के लिए हम स्कॉलरशिप से भी बेहतर अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। सो स्कॉलरशिप्स में क्या रहता है कि जिन स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स होते हैं सिर्फ वही क्वालिफाई कर पाते हैं। हम स्कॉलरशिप्स की बजाय सितंबर इनटेक के लिए सभी स्टूडेंट्स को स्टूडेंट डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। तो हर एक बच्चा जो सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई करेगा सभी को स्टूडेंट डिस्काउंट मिलेगा, एंड एवरीबडी कैन अवेल दिस। सो देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ $2,000 एट द मोमेंट। तो पहले हमारा फीस जो $13,800 था, अब वो सिर्फ और सिर्फ $11,800 है। सो सभी स्टूडेंट्स $2,000 का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं एट द मोमेंट। सो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है सभी स्टूडेंट्स के लिए क्वेबेक में पढ़ने के लिए। एंड इसके अलावा कुछ और बेनिफिट्स मैं डिस्कस करना चाहती हूँ इन टर्म्स ऑफ हमारे प्लेसमेंट्स एंड इन टर्म्स ऑफ द इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। सो आज के डेट में हर एक स्टूडेंट जो अब्रॉड पढ़ने जाना चाहता है, स्पेशली कनाडा में, एवरीबडी वांट्स टू गेट अ गुड जॉब टू स्टार्टेड विद देयर करियर राइट आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑफ देयर स्टडीज। सो मल्टी हेक्सा कॉलेज में हमारे सारे प्रोग्राम्स इंटर्नशिप बेस्ड प्रोग्राम्स हैं। सो सभी स्टूडेंट्स को 3 months ऑफ इंटर्नशिप करने को मिलता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ देयर प्रोग्राम, जिसमें वो एक्चुअली में सीखते हैं कि किस तरीके से वो सारे टास्क परफॉर्म करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे सारी लर्निंग्स को जो कि उन्होंने अभी 2 years के डिप्लोमा में सीखा है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंटर्नशिप सभी स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो मल्टी हेक्सा कॉलेज में हमारे पास 20 से भी ज्यादा IT कंपनीज के साथ टाई-अप्स हैं जहां पर हम अपने स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट के लिए हेल्प करते हैं। सो देयर विल बी 86% प्लेसमेंट फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हु विल बी स्टडीइंग विद अस इन आवर अपकमिंग इनटेक्स। सो आवर स्टूडेंट्स आर रियली हैप्पी। हां जी, जो बहुत ही खुश हूं कि अपॉर्चुनिटी स्पीकिंग इन हिंदी rather than ਪੰਜਾਬੀ, ਸੌਰੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ IT ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ ਮਲਟੀ ਹੈਕਸਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਜਿਹੜੀ IT ਕੰਪਨੀ ਦੀ IT ਹੱਬ ਵਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲਜ ਜਿੱਥੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਚਾਂਸ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਪਲੱਸ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਊਬੈਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਨੇ, DLI ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਪਰੂਵਡ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੌਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਫॉर द स्टूडेंट्स दैट दे विल बी एबल टू गेट द जॉब्स राइट एट द डोर स्टेप। या ओवर टू भूमिका। तो मैं उन्हीं कंपनीज के बारे में थोड़ा सा और बताती हूँ व्यूअर्स को। सो सबसे मेजर कंपनी जो कि कॉलेज की सेम बिल्डिंग में ही लोकेटेड है, उसका नाम है CGI। CGI is one of the largest IT company जो कि इंडिया में भी ऑपरेट करती है, एंड इट ऑपरेट्स इन क्यूबेक सैगने ऑल्सो, जो कि हमारे साथ बिल्डिंग शेयर करती है। सो मेजॉरिटी बच्चा तो विद इन द सेम बिल्डिंग अप्लाई करता ही करता है फॉर इंटर्नशिप एंड फॉर दी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज। इसके अलावा यूबीसॉफ्ट भी हमारे सिटी में कंपनी लोकेटेड है, और पूरे क्यूबेक के अंदर अगर मैं सबसे लीडिंग IT कंपनीज की बात करूं जैसे कि एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट, सो एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे लीडिंग कंपनीज भी कनाडा में सिर्फ और सिर्फ क्यूबेक प्रोविंस में लोकेटेड है। सो क्यूबेक ही एक ऐसा प्रोविंस है कनाडा में जहां पर सबसे ज्यादा IT कंपनीज आज की डेट में है। तो अगर आपको IT में करियर बनाना है, सो क्यूबेक is the most preferred destination and should be the most preferred destination सभी स्टूडेंट्स के लिए। और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रॉबिन जी जो आप चाहते हैं थोड़ा सेमिनार को समराइज कर दूं स्टूडेंट्स के लिए। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਮੈਡਮ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਕਾਲਜ ਮਲਟੀ ਹੈਕਸਾ ਆ, ਕਿਊਬੈਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਆ, DLI ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ,
ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਾਲਜ $2000 ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕਿ 6 ਬੈਂਡ ਓਵਰਆਲ ਚਾਹੀਦੇ, 5.5 ਇੱਕ ਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਪੀਟੀ ਦੀ ਸਕੋਰ 55 ਓਵਰਆਲ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 51 ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਡਿਊਲ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਡੈਡਲਾਈਨ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਜੂਨ 15। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ करो। हाँ जी मैडम, कुछ बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं रिगार्डिंग ड्यूलिंगो। तो ड्यूलिंगो आई डोंट थिंक सो वी आर एक्सेप्टिंग इट फॉर द वीजा पर्पसेस और Duolingo is not considered as good as IELTS और PTE, तो इतना अच्छा उसका वेटेज हम नहीं कंसिडर करते हैं फ्रॉम वीजा पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर हम बात करें तो भी। सो इट्स बेटर कि आप IELTS और PTE करें और जल्दी से जल्दी करें ताकि हम आपको अपकमिंग इनटेक्स के लिए एक्सेप्ट कर सकें। बिल्कुल सही बात है। अब एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट इफ द स्टूडेंट शोइंग स्टडी इन अब्रॉड एंड होल्डिंग 7.5 ओवरऑल ग्रेड्स इन करंट डिप्लोमा? या Mani is one of our students who is in Slovenia right now. We have sent him to Slovenia, the European Union, and he has already finished his diploma from over there. And he has mentioned that he is having around 7.5 overall grade in his current diploma. So I think that we are able to get him admitted. Absolutely. Only thing is that we need. 7.5 CGPA, yeah. Yeah. Only thing is that we need to see his IELTS or PTE score. Am I right? Yeah, we need to make sure कि आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी हमारी रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं। सो आपको अपने ट्रांसक्रिप्ट्स, अपने डॉक्यूमेंट्स जरूर शेयर करने होंगे टू ऑल द स्टूडेंट्स। जब तक आप अपनी डॉक्यूमेंट्स नहीं शेयर करेंगे असेसमेंट के लिए, तब तक हम एक फाइनल डिसीजन आपको नहीं दे पाएंगे कि क्या हम आपको सितंबर इनटेक में एडमिशन दे सकते हैं या नहीं। सो मेक श्योर कि आप राज फाउंडेशन के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स जरूर शेयर करें। ਹਾਂਜੀ ਮੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਜੇ। ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਡੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਲਸ ਜਾਂ ਪੀਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਆਇਲਸ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆਇਲਸ ਜਾਂ ਪੀਟੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਈਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸਾਡਾ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਜੇ ਸਲੋਵੇਨੀਆ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਸਟ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਗਵਾਏ ਆਪਣਾ ਆਇਲਸ ਜਾਂ ਪੀਟੀ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਣੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਪਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀ ਐਕਸਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ इनवाइट करने लगे हैं दूसरे कंबरलैंड कॉलेज के। तो मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक जो भी क्वेश्चन होगा वी विल लेट यू नो एंड विल ट्राई टू मीट योर डेडलाइन फॉर द एडमिशन फॉर द सितंबर 2021। ओके ओके, थैंक यू सो मच। थैंक्स। थैंक यू मैडम, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। सो हुण आ रहे ने साडे कोलों अभिषेक जी। लेट मी सी, शीज, हाँ जी मैं भेज रहा जी उन्होंने इनवाइट। मिस्टर अभिषेक आ रहे ने कंबरलैंड कॉलेज तो। वेलकम मिस्टर अभिषेक संजय। Thank you sir, how are you? Very good sir, very good. We are very happy to see your smiling face over here. Thank you, thanks. And I hope everything is okay at your end. Yeah, it's all going good. We have kept ourselves safe, and I hope that all of you who are watching this live sessions you are safe, and please adhere the government's terms what they have said. Go for the vaccinations, be safe. We all have to fight together to end this pandemic. We all have to be join hands. So that's and really thankful to Mr. Singh and युवराज फाउंडेशन जिन्होंने आज ये प्लेटफॉर्म दिया है मेरे को हमारे जो कंबरलैंड कॉलेज है उनके बारे में आपके सामने कुछ बात रखने की। सबसे पहले मैं शुरू करने वाला हूं, हम लोग सितंबर 2021 के लिए ओपन है। वी आर स्टिल टेकिंग एप्लीकेशंस, हम लोग एप्लीकेशन ले रहे हैं सितंबर 2021 के लिए। और कंबरलैंड कॉलेज ये एक पब्लिक इंस्टीट्यूट है सचकाशवन में और रीजनल कॉलेज सिस्टम के अंदर आती है। तो सबसे पहली मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा सचकाशवन के बारे में, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या क्या प्रोग्राम्स अवेलेबल है और क्या फायदा हो सकता है आपके लिए। तो सबसे पहली फैक्ट आ जाती है सचकाशवन की। अगर मैं बात करता हूं तो कनाडा एज ए कोल्ड कंट्री हम लोग जानते हैं कि कनाडा कोल्ड है, लेकिन अगर उसी बारे में बात करूं कि सचकाशवन इज द सनीएस्ट प्रोविंस इन द एंटायर कनाडा, पूरी कनाडा की सबसे सनीएस्ट प्रोविंस है वो है सचकाशवन। नॉट ओनली दैट, आज अगर हम लोग बात करें सचकाशवन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिकल प्रोविंस इन द एंटायर कनाडा। इसके पीछे इनकी दो फैक्ट्स काफी मजबूती से हाथ देती है। एक है एग्रीकल्चर, 42 to 48% ऑफ एग्रीकल्चर पूरी कनाडा की कैटर करती है सचकाशवन।
और उसकी मैं एक प्रोडक्शन बार थोड़ा पंजाबी व्यूअर्स के लिए थोड़ा बताता हूँ प्लीज। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੀ ਜੇ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਸਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਕੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ठीक है सर, आ रही है। ਹਾਂ तो ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਲੇਕਲੈਂਡ ਕਾਲਜ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਤੇ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੀਆਰ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੋਰ ਦੈਨ 50 ਪਲੱਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪੀਆਰ ਲੈ ਚੁੱਕੇ। ਸੋ ਅਲਬਰਟਾ ਐਂਡ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਏਰੀਆ ਆ ਪੀਆਰ ਵਾਸਤੇ, ਫਾਸਟ ਪੀਆਰ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਕੰਬਰਲੈਂਡ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਹੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਇੱਥੇ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। तो सर दसेंगे कॉलेज बारे, कॉलेज के प्रोग्राम बारे। ओवर टू मिस्टर अभिषेक once again। थैंक यू जी। तो जैसे कि सिंह सर ने कहा, ये पब्लिक इंस्टीट्यूट है एस्केलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ सस्कैचुअन, और सस्कैचुअन के बारे में हम यही कहेंगे कि ये सनीएस्ट प्रोविंस है। इसका मतलब है आप एक कोल्ड कंट्री में जाते हुए भी सन आपके साथ है, सनलाइट आपके साथ है। और बाय दी वर्चुअल कुछ फैक्ट्स जो रहते हैं, क्यों सस्कैचुअन को वन ऑफ द बेस्ट वेदर कंडीशन कहा जाता है कनाडा की, उसकी खासियत यह है कि 42 to 48% पूरी कनाडा की जो एग्रीकल्चर है वो कैटर करती है सस्कैचुअन। जिसमें से अगर हम लोग बात करें तो गेहूं का इसलिए मैंने किया क्योंकि हम लोग सब जानते हैं गेहूं इज ए वार्म कंडीशन प्रोडक्ट। तो अगर वार्म कंडीशन प्रोडक्ट है वो सस्कैचुअन में हो रही है, इतनी बड़ी तादाद में हो रही है, क्योंकि इनको वर्ल्ड फीडर भी कहा जाता है। तो साइंस क्या कहती है कि एक वार्म कंडीशन वाली प्रोडक्ट इतनी बड़ी पैमाने पे जहां पे होती है, दे हैव टू हैव द बेस्ट ऑफ द वेदर कंडीशंस। अगर सस्कैचुअन की बात करें, दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिकल प्रोविंस इन दी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिकल प्रोविंस इन कनाडा। उनके पीछे हाथ है उनकी माइनिंग का भी, जिसको बेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, जिसको पूरी दुनिया में बेस्ट प्लेस कहा जाता है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो माइनिंग के लिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचता है तो सबसे पहला ऑप्शन आता है सस्कैचुअन, जहां पे हम लोग बात करें डायमंड्स, ऑयल, सोडियम और द रेयरेस्ट ऑफ द यूरेनियम, सबसे बड़ी प्रोडक्ट एक्सपोर्टर है यूरेनियम की सस्कैचुअन। तो आज आप जाना डेफिनेटली चाहेंगे उस प्रोविंस में जहां की खासियत एग्रीकल्चर, क्योंकि डिपेंडेंसी रहती है ओन प्रोविंस की, और द माइनिंग, जिसके कारण आज वो इकोनॉमिकल इतनी स्ट्रांग बढ़ रही है। सस्कैचुअन के बारे में और बात करें कि ये भी रिकॉर्ड किया जाता है कि सस्कैचुअन इज द प्रोविंस व्हिच हैव द लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये जो फैक्ट्स फिगर है ये हम लोग ग्लोबल न्यूज से भी लिए हुए हैं। वो भी डिटेल्स अगर आप ज्यादा तरीके से, ज्यादा गौर से जानना चाहते हैं, प्लीज आज युवराज फाउंडेशन से कांटेक्ट कीजिए। दे आर आवर ऑथोराइज्ड रिक्रूटर्स, वो हमारे लिए रिक्रूट करते हैं। दे हैव बीन ऑथोराइज्ड टू रिक्रूट, और आपके पास पूरी डिटेल्स भेज दी जाएगी। आज अगर हम सस्कैचुअन के बारे में बात करते हैं तो मेड इन आफ्टर टैक्स इनकम के बारे में भी अगर हम लोग गौर करें तो आज कनाडा की अप्रोक्स आती है 71,700, लेकिन आज सस्कैचुअन की अगर फिगर देखें तो वो 10% हाई है नेशनल एवरेज से। सो डेफिनेटली आप उस जगह पे जाना चाहेंगे जहां पे दी गेटिंग ए जॉब इज मच मोर हायर, द प्रोबेबिलिटी इज मच मोर हायर, द सैलरी स्ट्रक्चर इज मच मोर हायर। सो डिफाइनेबल फैक्ट्स ये रहता है कि वी आर आस्किंग यू टू ज्वाइन एज वन ऑफ द बेस्ट प्रोविंस इन कनाडा। अब हम लोग आ जाते हैं हमारी इंस्टीट्यूट्स के बारे में, जिसका नाम है कम्बरलैंड कॉलेज। जैसे कहा गया है दे आर द पब्लिक इंस्टीट्यूट्स। सो पब्लिक इंस्टीट्यूट्स के साथ हम लोग 3 कैंपस आपको ऑफर कर रहे हैं। फर्स्ट इज मेलफोर्ड, सेकंड इज निपवेन एंड थर्ड इज टिस्टन। तो मेलफोर्ड के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, काफी सिनिक ब्यूटी है। इसको ये जो लोकल शॉपिंग के लिए काफी फेमस है, दूर दराज से लोग यहाँ पे आते हैं। सो ये जो सिटी है ये ऑल टाइम भरा रहता है। निपवेन इज नोन एज द पर्ल्स ऑफ पाइन। इसकी खूबसूरती, पाइन फॉरेस्ट, नेचुरल स्टिंग्स, यू ऑलवेज हैव द रिक्रिएशन अपॉर्चुनिटी। और टिस्डल काफी फेमस है अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए। तो आज ये जो 3 कैंपस में टोटल आपको मिलेंगे 5 प्रोग्राम सितंबर 2021 इनटेक के लिए। तो पहली प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं, एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट, एग्रीकल्चर साइंस सर्टिफिकेट। गौर कीजिए, एक ऐसा प्रोविंस जो फेमस है एग्रीकल्चर के लिए, वहां पे हम आपको ऑफर कर रहे हैं एग्रीकल्चर साइंस प्रोग्राम्स। सो अगर कोई इस प्रोग्राम्स में आना चाहता है तो 6.5, नो बैंड लेस देन 6, और PTE 58, नो कंपोनेंट लेस देन 50, और ड्यूलिंगो 115। तो गौर कीजिए, आपके पास PTE है, एलिजिबल है, IELTS है, एलिजिबल है, ड्यूलिंगो है, एलिजिबल है, प्रोवाइडेड आप जो हम लोग मार्किंग चाहते हैं 6.5 नो बैंड लेस देन 6 IELTS के लिए, 58 नो बैंड लेस देन 50 PTE के लिए, और ड्यूलिंगो 115। ग्रेड 12, आपको ग्रेड 12 में मैथमेटिक्स होना जरूरी है। 50%, नो सब्जेक्ट्स बिलो 50% अगर आपके पास है तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। एक ड्यूलिंगो के बारे में पूछना
हाँ हाँ जी, जी। हमारे पास 115 अगर किसी ने ड्यूलिंगो स्कोर किया हुआ है तो हम ये प्रोग्राम उनको ऑफर करेंगे। आप अनकंडीशनल लेटर दोगे या कंडीशनल लेटर दोगे? हम लोग अनकंडीशनल लेटर भी देंगे। अगर किसी ने किसी के पास अभी एग्जामिनेशन देना है, उन्होंने डेट बुक कर लिया है, या जैसे कि अभी ग्रेड 12 के बारे में बात करें, अनसर्टेनिटी बहुत जगह पे है, एग्जाम होगी या नहीं होगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अभी सीट बुक कर सकते हैं, आपको अपनी डिटेलिंग फॉरवर्ड करनी होगी। जिन्होंने इंग्लिश टेस्ट के लिए है, आपकी एग्जामिनेशन डेट आपके पास है, आप बुक कर दीजिए, हम लोग अनकंडीशनल ऑफर लेटर देंगे, कंडीशनल ऑफर लेटर देंगे। अगर आपके पास ग्रेड 12 के रिजल्ट नहीं है, आप चाहते हैं ज्वाइन करना, प्लीज आप हमको डिटेल्स दीजिए कि हम लोग एक्सपेक्टेड ये है मार्क्स, हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, यू विल गेट ए कंडीशनल ऑफर लेटर। नहीं, मेरा तो, ड्यूलिंगो के बारे में क्वेश्चन था कि मिल जाएगा सर। वो एलओ लेटर मिलेगी उसके बेस पे या ऑफर लेटर मिलेगी? सर ऑफर लेटर आएगी। अच्छा, ठीक है, उसको आपके पास कंडीशन जो मीट भी करनी पड़ेगी। यस डेफिनेटली, टू गेट दी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आपको कंडीशन मीट करनी पड़ेगी। ठीक। तो एग्रीकल्चर साइंस सर्टिफिकेट के बारे में जैसे कहा, मैथ जरूरी है ग्रेड 12 में। बहुतों के पास से रिक्वेस्ट आती है कि मैथ नहीं है, मेरे को ये सब्जेक्ट चाहिए। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। 25 कैनेडियन डॉलर देके आप लोग एक ऑनलाइन मैथ एग्जामिनेशन दे सकते हैं। बहुत सिंपल है, 99.99% चांसेस है सिक्योर करने की। जो स्टूडेंट लोग देते हैं 99.99% क्लियर कर जाते हैं। सो 25 कैनेडियन डॉलर दे के ऑनलाइन मैथ एग्जामिनेशन कहीं से भी आप दे सकते हैं। आप अप्लाई कीजिए एग्रीकल्चर साइंस सर्टिफिकेट के लिए। दूसरी प्रोग्राम्स आपके पास आती है, वो आती है जनरल बिजनेस डिप्लोमा। तो किन्होंने भी ग्रेड 12 अगर किया है, सो ग्रेड 12 में 50%, नो सब्जेक्ट्स बिलो 50, 6.5, नो बैंड लेस देन 6, PTE 58, नो कंपोनेंट लेस देन 50, या ड्यूलिंगो 115 अगर है, 50%, नो सब्जेक्ट्स बिलो 50। ग्रेड 12 में आपके पास है मैथमेटिक्स होनी जरूरी है और स्टैटिस्टिक्स। या आपके पास ग्रेड 12 में मैथमेटिक्स है, कोई भी स्ट्रीम के हो आप साइंस के हो, आप कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, मैथ जरूरी है इस प्रोग्राम्स में आने के लिए, या स्टैटिस्टिक्स लगेगी। लेकिन अगर किसी के पास नहीं है और ये प्रोग्राम में आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप अगेन मैथ एग्जाम के थ्रू आ सकते हैं। 25 कैनेडियन डॉलर इसकी लगेगी। आप प्रोग्राम, सबसे पहली जो फैक्ट्स आती है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं आप अपनी प्रोफाइल को शेयर कीजिए। आपके पास जो भी प्रोफाइल है, आपका डाउट है या आपको लगता है कि यस एक प्रोग्राम में मेरे को जाने के लिए क्या क्या लगेगा, युवराज फाउंडेशन के पास अपनी प्रोफाइल शेयर कीजिए। दे आर आवर ऑथोराइज्ड पार्टनर। जिन्होंने भी प्रोफाइल शेयर करनी है, वो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो जी। व्हाट्सएप नंबर इज 9888713144 9888713144। यहाँ पे हम थोड़ी सी अपनी प्रोग्राम डिटेल शेयर कर ले, फिर मैं क्वेश्चनिंग पे आ रहा हूँ। यहाँ पे जैसे कि रोजी ने एक चीज कहा है, मैं बताता हूँ। 50% नो सब्जेक्ट्स बिलो 50%। वन थिंग इज 50% नो सब्जेक्ट्स बिलो 50%, तो 50% होनी जरूरी है। तो अगर आपके पास 50% नो सब्जेक्ट्स बिलो 50% है विथ मैथमेटिक्स, आप इस प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट प्रोग्राम्स पे आते हैं हम लोग, कंटिन्यू केयर असिस्टेंस प्रोग्राम। सो कंटिन्यू केयर असिस्टेंस प्रोग्राम अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है, तो ग्रेड 12 या ग्रेड 12 इक्विवेलेंट या जीएनएम या नर्सिंग या मेडिकल रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम आपने की हुई है, आपकी 50% ओवरऑल, नो सब्जेक्ट्स बिलो 50 है, IELTS 6.5, नो बैंड लेस देन 5.5 है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। या आपके पास PTE 63, नो कंपोनेंट लेस देन 50 है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ड्यूलिंगो 110। नेक्स्ट प्रोग्राम्स हम लोग आते हैं, डिसेबिलिटी सपोर्ट वर्कर। काफी यूनिक प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम हम लोग लॉन्च कर रहे हैं सितंबर 2021 में। तो एक नए प्रोग्राम की एक्सपीरियंस आपके पास आएगी, एक हाई डिमांड प्रोग्राम की एक्सपीरियंस आएगी। ये जो सिचुएशन अभी क्रिएट हुआ है, इसके कारण कंटिन्यू केयर या डिसेबिलिटी सपोर्ट वर्कर की प्रोग्राम की डिमांड काफी बढ़ गई है। तो मिस मत कीजिए ये चांस, अभी ज्वाइन कीजिए। 6.5, नो बैंड लेस देन 5.5, या आपके पास PTE है 63, नो कंपाउंड लेस देन 50, या ड्यूलिंगो है 110। ग्रेड 12 या ग्रेड 12 इक्विवेलेंट या GNM या नर्सिंग, 50%, नो सब्जेक्ट्स बिलो 50, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट प्रोग्राम ऑफरिंग ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन की, सेम क्राइटेरिया, या ग्रेड 12 या ग्रेड 12 इक्विवेलेंट, 50%, नो सब्जेक्ट्स बिलो 50, IELTS 6.5, नो बैंड लेस देन 5.5, या PTE 63, नो कंपाउंड लेस देन 50, या आपकी जो हमारी ड्यूलिंगो है 110। तो ये प्रोग्राम्स आप पांचों आपके लिए हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन आती है, कम्बरलैंड कॉलेज
पब्लिक इंस्टीट्यूट रीजनल कॉलेज सिस्टम के अंदर एस्केलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ सस्कैचुअन, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। सबसे अहम बात आती है, आप जब पढ़ाई कर रहे हैं उसके संग संग आपको जॉब करने की फैसिलिटी मिलती है 20 आवर्स पर वीक, और जब आप लीव में रहते हैं या आप जब ऑफ रहते हैं पढ़ाई से 40 आवर्स पर वीक, तो ये फैसिलिटी भी आप ले सकते हैं। और सस्कैचुअन में सस्कैचुअन इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम, जो कि युवराज फाउंडेशन बेटर रहेंगे इस चीज़ के बारे में बात करने के लिए, मैं एक छोटी सी बात करके उनको हैंड ओवर करूंगा। 960 घंटे सिर्फ चाहिए ओवरऑल आपका SINP के लिए अप्लाई करना, बाकी क्राइटेरिया ऑटोमेटिकली रिफिल हो जाती है। सो कम्बरलैंड कॉलेज आप सबको वेलकम करते हैं सितंबर 2021 इनटेक के लिए। 140 हम लोग की एप्लीकेशन फीस है, जितनी जल्दी हो सके अप्लाई कीजिए। सीट्स काफ़ी कम रखी हुई हैं हमने अभी, तो जो कभी भी भर सकती है। युगराज फाउंडेशन, दे आर आवर ऑथोराइज्ड पार्टनर्स टू रिक्रूट, so please contact to get into Cumberland, get into Saskatchewan, one of the best province for students, क्योंकि one of the cheapest in terms of living, but इनकी living condition they known as elite। so हर एक चीज की मायने आप रखते हैं, क्योंकि आप जहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पे ट्यूशन फीस के संग संग आपकी ओवरऑल कॉस्टिंग भी ऐड होती है। तो आप एक ऐसा जगह चूज करना चाहेंगे जहाँ की जो ट्यूशन फीस है दे आर रियली नॉमिनल, अपार्ट फ्रॉम दैट you have the best option in terms of living, in terms of staying, and definitely to getting a jobs out there। सर जी, any queries, any questions आपके तरफ से? फीस का एक बार बता दीजिए। हाँ, ये जो फीस आती है, एनुअल फीस हम लोग की आती है 18,000 कैनेडियन डॉलर फ्लैट हर एक प्रोग्राम्स के लिए, इंक्लूडिंग ऑल। मैं ये कहता हूँ इंक्लूडिंग ऑल, आपकी ट्यूशन फीस, मेडिकल्स, जो भी फैक्टर्स रहती है, कंपोनेंट, फिर भी जो भी रहती है, इंस्ट्रूमेंट, सब कुछ इंक्लूड किया हुआ है। आपको और खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। बुक, स्टडी मटेरियल सब इंक्लूड किया हुआ है। सो ओवरऑल जो आती है इट्स 18,000 कैनेडियन डॉलर। लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में अगर हम बात करें, मैं फिर से कहता हूँ कुछ चीज रही नहीं, सब कुछ इसके अंदर है। सही बात। So, Sarya, thank you, sir. Thanks for giving me the information. So, you can leave now, and I will proceed with the students. You can continue in the webinar. Thank you, sir. Thanks for the time. Thanks. Be safe, everyone. Thank you. Thank you. ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਰਲੈਂਡ ਕਾਲਜ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਇੰਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਇੰਗ ਕੇਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਆਫਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ। ਪੀਟੀ ਵੀ ਅਸੈਪਟ ਵਾ, ਆਇਲਟ ਵੀ ਅਸੈਪਟ ਵਾ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਟਰ ਵਾਸਤੇ ਡਿਊਲਿੰਗੋ ਵੀ ਅਸੈਪਟ ਹੈਗਾ। $18,000 ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਆ ਐਨੂਅਲ, ਲਗਭਗ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜ PR ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਨੇ, ਕਾਫੀ 260 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇਫ ਯੂ ਵਿਲ ਸਰਚ ਐਂਡ ਗੂਗਲ SINP, you will get all sort of information. So this is the time for now to complete and close this webinar. So if you want to apply through Yuvraj Foundation for the September intake, our WhatsApp and contact number is 9888 713144. And our website is www.yuvrajfoundation.com. We are situated just opposite of the Khalsa College, Amritsar, gate number 4. So सारे का बहुत धन्यवाद। Thank you, Mr. Abhishek ji. Thank you, Madam Bhumika, for your wonderful time and giving the wonderful information for the students who are really interested in study. Thank you जी, सारे का बहुत धन्यवाद। बाकी जिन्हों ने फॉलो करना जी, फॉलो करो जी सानू, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਤੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, 9888713144, ਵੈਬਸਾਈਟ www.yuvrajfoundation.com। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਿਦਿਨ 24 ਆਵਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਥ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 50% ਤੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਕਿ 50% ਓਵਰਆਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ 50% ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੈਥ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ WhatsApp ਕਰੋ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੇਫ ਰਹੋ ਕਰੋਨਾ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਤੇ ਮਾਸਕ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਤੇ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ।